वेलकम टू लीगल मिस्ट्री सिंप्लीफाइड। इस चैनल पे हम लोग कंपनी लॉ की क्लासेस कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच और एवोल्यूशन हिस्ट्री सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। कल सेक्शन 1 देखा था, आज सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। शॉर्ट टाइटल: दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 2013 क्लॉज 2 एक्सटेंड. It extend to whole of India. The act applies to all parts of India. No state or UT is excluded. Any company operating in India must follow this law. ये एक्ट होल इंडिया पे अप्लाई होता है। कोई भी स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी इससे एक्सक्लूडेड नहीं है। हर कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उसे ये लॉ फॉलो करना पड़ेगा। क्लॉज 3 कमेंसमेंट: This section shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act, and any reference in the provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. Section 1 itself became active immediately. Other sections start only when the government says so by notification. Different sections can start on different dates. सेक्शन 1 जो था वो इमीडिएटली एक्टिव हो गया था, इमीडिएटली अप्लाई कर दिया गया था, और जो बाकी सेक्शंस थे वो तब अप्लाई हुए थे जब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी थी, और अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट्स पे एनफोर्स हुए थे। So indeed, it empowers the central government to bring different provisions of this act into force on different dates through official notification. Clause 4. The provisions of this act shall apply to A. Companies incorporated under this act or under any previous company law. Incorporated companies applies to companies made under Companies Act 2013, companies made under old laws like 1956 Act. Old companies are also governed by this new act. जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी हुई हैं और जो कंपनीज पुराने लॉज के अंडर बनी हुई हैं, जो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, ये उन पे अप्लाई होता है। और जितनी ओल्ड कंपनीज हैं वो भी अब ये नए रूल्स फॉलो करेंगे। क्लॉज 4 का सब क्लॉज बी, दैट इज इंश्योरेंस कंपनीज. Insurance companies, except in so far as the third provisions are consistent with the provisions of the Insurance Act 1938 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. Insurance companies must follow this act. If there is conflict with Insurance Act 1938 or IRDA Act 1999, then insurance law will prevail. This is pretty much clear. अगर कोई भी ऐसा लॉ है जो इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट में कंट्राडिक्ट करता है तो वहाँ पे इंश्योरेंस लॉ प्रिवेल करेगा, बिकॉज स्पेशल लॉ ओवरराइड्स जनरल लॉज. इसके बाद बैंकिंग कंपनीज, क्लॉज 4 सब क्लॉज सी. Banking companies, except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Banking Regulation Act 1949. Banks must follow this act, but if there is clash with Banking Regulation Act 1949, then banking law will prevail. तो इसमें भी वही चीज़ है, अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट का कोई लॉ या प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी है तो बैंकिंग लॉ फॉलो होगा, बैंकिंग लॉ विल प्रिवेल. Clause 4 subclause D. Company engaged in general supply of electricity except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Electricity Act 2003. Clause 4 subclause F. Such body corporate, incorporated by any act for the time being in force as the central government may by notification specify in this behalf, subject to such exceptions, modifications or adaptation as may be specified in the notification. So this section pertains to body corporates. Some other legal bodies which are created by special laws which follow this act only if central government says it so by notification. Example, statutory corporation may be bought under this act. तो कुछ जो स्पेशल लॉ से बनी हुई बॉडीज हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे, इनमें भी कंपनीज एक्ट तभी फॉलो होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के एक्सप्लिसिटली मेंशन करेगी.
सपोज गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में मेंशन करा XYZ अथॉरिटी पर कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस अप्लाई होंगे, तो वही सेक्शंस अप्लाई होंगे जो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। कंपनीज एक्ट सब पर लगता है, लेकिन स्पेशल लॉ जहां भी आएगा वहां पे स्पेशल लॉ ही प्रिवेल करेगा, नॉट जनरल लॉ। डेफिनेशंस इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। आपको ये हर डेफिनेशन क्लॉज में मिलता होगा। इसका मीनिंग ये होता है, जनरली ये जो डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं यही मीनिंग रहेंगी, बट इफ देयर इज स्पेशल कंटेक्स्ट, कोई और केस है, केस अलग है, तो ये मीनिंग चेंज हो सकती है। इसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी का मतलब है कोई भी बिजनेस जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर है या पुराने कंपनी लॉ के अंडर लीगली रजिस्टर हुआ हो, पुराने जितने भी थे। तो जो बिजनेस लॉ के थ्रू ऑफिशियली बना है वही कंपनी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its articles restricts the right to transfer its shares except in the case of one person company, limits the number of its members to 200, provided that where two or more persons hold one or more shares in the company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member. तो प्राइवेट कंपनी वो होती है जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखती हो और जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में वो चीज लिखी हुई हो। तो पहली चीज इसमें ये देखते हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। सोचो आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। कंपनी शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा आपको डालना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो ये पैसा होता है शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी के मेंबर्स जो पैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ओनर्स जो भी है। और जो मिनिमम है इसका मतलब है गवर्नमेंट कहती है कंपनी स्टार्ट करनी है तो कम से कम इतना पैसा, मिनिमम पैसा आपको रखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ये थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट असर्टेन करती है। तो मिनिमम शेयर कैपिटल कंपनी स्टार्ट करने के लिए ओनर्स का बेसिक पैसा जो लॉ के हिसाब से देना होता है, जो मैंडेटरी होता है, वो होता है मिनिमम शेयर कैपिटल। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन मतलब उनकी रूल बुक में वो चीज मेंशन होनी चाहिए। पूरे सेंटेंस को अगर हम ज्वाइन कर लें तो इसका मतलब ये है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रखती है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उस चीज को मेंशन भी किया हुआ हो। आप अपने शेयर्स फ्री में किसी को भी नहीं दे सकते हो, किसी को भी नहीं बेच सकते हो, ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आप अपने शेयर्स फ्री में किसी को भी नहीं दे सकते हो, किसी को भी बेच नहीं सकते हो या ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कंपनी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे बोर्ड अप्रूवल मैंडेटरी है। तो ये शेयर ट्रांसफर का एक रेस्ट्रिक्शन है जो प्राइवेट कंपनीज पे है। इसके बाद मेंबर लिमिट मैक्सिमम 200। तो 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स या ओनर्स हो सकते हैं। और एक पॉइंटर जो आपको याद करना है, अगर 2 या ज्यादा मेंबर्स मिलके एक शेयर ले रहे हैं तो लॉ उन्हें एक ही मेंबर कंसीडर करेगा, अलग अलग नहीं। इसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड, इस लाइन का मतलब है अगर कोई पर्सन कंपनी में जॉब करता है और साथ ही कंपनी का मेंबर भी है, मतलब शेयर होल्डर भी है, उसने शेयर भी परचेज करके रखा है, तो उसे ये 200 मैक्सिमम लिमिट में काउंट नहीं करा जाएगा क्योंकि वो शेयर होल्डर भी है। ये लाइन ये कह रही है। इसके बाद बी, persons who have been formally in the employment of the company where the members of the company while in that employment have continued to be members after the employment ceased shall not be included in the members and these people are not included in 200 limit। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है और उसके नीचे वाला उसी की एक्सप्लेनेशन है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो मैं एक्सप्लेन करती हुई चल रही हूँ। फॉर्मर एम्प्लॉयज वो हैं अगर कोई पर्सन पहले एम्प्लॉय था, जॉब के टाइम पे ही मेंबर बना है और जॉब छोड़ने के बाद भी वो मेंबर ही बना रहा है, तो उसको भी काउंट नहीं करा जाएगा। एक बार और समझा देती हूँ। पहले एम्प्लॉयज थे, जॉब के टाइम पे मेंबर बने हैं और जॉब छोड़ने के बाद भी मेंबर हैं,
क्योंकि एम्प्लॉय तब तक थे जब तक वो जॉब कर रहे थे, अब वो जॉब नहीं कर रहे हैं, पर मेंबर वाला पोर्शन तो उनका है ना। एक एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ, ठीक है। बेसिकली प्राइवेट कंपनी के 200 मेंबर वाली लिमिट में कुछ लोगों को काउंट नहीं किया गया है, उनमें से ही एक फॉर्मर एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो एक आदमी है रोहित, ठीक है। रोहित पहले कंपनी में जॉब करता था, तब वो एम्प्लॉय था। जॉब के दौरान उसने शेयर्स खरीदे, मतलब वो मेंबर बन गया। बाद में उसने जॉब छोड़ दी, अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा, लेकिन उसने शेयर्स बेचे नहीं अपने, तो अभी भी वो मेंबर ही है। तो इसमें जैसे रोहित का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, तो ये भी 200 वाली लिमिट में काउंट नहीं होगा। अब थर्ड, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company. The company cannot ask the general public to buy its shares or other securities. It must raise money privately, not through advertisement or public offers. तो कंपनी पब्लिक को एडवर्टीजमेंट करके शेयर्स या सिक्योरिटीज नहीं बेच सकती है, पैसे सिर्फ प्राइवेट लोगों से ही रेज कर सकती है, नॉट जनरल पब्लिक। ये अपना प्रोस्पेक्टस सिर्फ प्राइवेट लोगों तक ही जाएगा, इनका प्रोस्पेक्टस इट्स नॉट अवेलेबल फॉर पब्लिक, जनरल पब्लिक। इसके बाद 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 person एज अ मेंबर। इसमें मेंबर या ओनर सिर्फ एक होगा, उसके पास ही कंपनी के सारे शेयर्स होंगे, इसलिए ये 1% कंपनी है। अब क्लॉज 59 देख लेते हैं। Includes any director, manager, or key managerial personnel, or any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or any one or more of the directors in or are accustomed to act. An officer is anyone who is officially part of the company management, like a director, manager, key managerial personnel, CEO, CFO, company secretary, etc. Or someone who controls the directors from behind the scenes, even if the person has no formal job title. If the board usually follows the person's orders or advice, that person is also treated as an officer under the law. तो ऑफिसर सिर्फ वही नहीं होते जो कंपनी में ऑफिशियल पोस्ट पर हों, बल्कि वो भी होते हैं जो कंपनी के डिसीजंस वगैरह कंट्रोल करते हैं एक्सटर्नली, ठीक है। जैसे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, के एम पीज, सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग तो एक्सप्लिसिटली और ओपनली कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होता है और जो मेंशन्ड है। पर कुछ पर्सन कंपनी के रिकॉर्ड में डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होते हैं, लेकिन बोर्ड उनकी बात को कंसीडर करता है या मानता है, डिसीजंस उनके कहने पर ही होते हैं। तो लॉ बोलता है ये भी ऑफिसर की ही कैटेगरी में आएंगे और इन्हें भी ऑफिसर ही माना जाएगा, ये कह रहा है। तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बाकी के डेफिनेशंस हम कल कवर करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and hit the bell icon for all recent updates.